السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اتحاد کے MLA امیدوار گنڈو شنکر نے کہا ہے کہ نوجوان، خواتین، بوڑھے، ماہی گیر، SC اور BC جیسے تمام طبقات چندر بابو کے وزیر اعلیٰ بننے کا انتظار کر رہے اور منڈل کے بدروانی پیٹ گاؤں کے سوسائٹی کے صدر اور YSRCP MPTC باری وامشی ولسایا نے 150 کنبوں کے ساتھ YCP چھوڑ دیا ہے اور تیلگو دیشم پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ جنسینا پارٹی کے صدر کونیڈالا پون کلیان کی نامزدگی کے مبارک موقع پر نامو ڈاکٹروں اور جنسینا پارٹی کے قائدین ڈاکٹر دنیتی سریدھر نے بشکریہ ملاقات کی۔ سریکاکولم ورساولی سوریہ نارائنا سوامی نے خصوصی پوجا کی اور سوامی کی تیرتھ پرساد اور سوامی کی تصویر جنسینا پارٹی کے صدر کونیڈالا پون کلیان جنسینا پارٹی لیڈران ڈاکٹر دنیتی سریدھر کو سونپی۔ سریکاکولم منڈل رام چندر پورم پنچایت میں جونالا پاڈو امباٹی وانی پیٹ سبما پیٹ گاؤں میں یوتھ لیڈر دھرمنا رام منوہر نائیڈو نے روزگار کی ضمانت شدہ اجرت کے زیر اہتمام کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر روزگار کی ضمانت کے کارکنوں سے بات کی اور کہا کہ ایک بار آپ سب کی توجہ YSR کانگریس پارٹی کے منشور کے مطابق 99% فلاحی اسکیمیں نافذ ہو چکی ہیں اور آج ہر غریب کی آنکھوں میں خوشی دیکھی جا رہی۔ اتحاد کے امیدواروں رام موہن نائیڈو کی بیوی سری شرویہ اور گنڈو شنکر کی بیوی سواتی شنکر نے اتحاد کے امیدواروں سے مطالبہ کیا کہ وہ آئندہ انتخابات میں NDA اتحاد کو جیت کر ذمہ دار شہریوں کے طور پر ریاست کی ترقی میں حصہ لیں۔ انہوں نے شہر کے راجیو نگر کے بینکرز کالونی میں مدا رام کرشنا اور دھن لکشمی کے ذریعے منعقدہ پرجا گلم بابو سپر 6 مہم میں حصہ لیا۔ وشاکھاپٹنم MP امیدوار ڈاکٹر YSRCP ویسٹ حلقے کے مبصرین جنہوں نے بوتسا جھانسی لکشمی اور شری اداری آنند کمار کی حمایت میں انتخابی مہم میں حصہ لیا، وہ ڈاکٹر BR امبیڈکر یونیورسٹی کی گورننگ باڈی کے ممبر اور ریاستی خواتین ڈویژن کی نائب صدر پیدا رامنی کماری تھے۔ وشاکھاپٹنم کے وارڈ 52 میں ڈپٹی میئر رجیانی سریدھر اور وارڈ صدر رجیانی ماروتی اس دوران موجود رہے۔ سنیل ڈمپل نے سخت احتجاج درج کرایا ہے۔ راجوری میں SWD ملازم AEE کے فوجی جوان کی ٹارگٹ کلنگ کی مذمت کی۔ شاردا شریف کے قریب پولیس چوکی پر گرینیڈ حملے اور راج پوری کنڈ ٹوپا میں عسکریت پسندوں کے ڈرون حملے کی بھی مذمت کی۔ آج راجوری میں کنڈ ٹوپا پور میں شہادرہ شریف کے پاس آتنکوادیوں نے ایک کائرانہ حرکت کی اور معصوم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے رزاق کو ٹارگیٹڈ کلنگ کر دی، اس کی شہادت لے لی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے بھی رزاق کے والد پتا جی کا آتنکوادیوں نے ملیٹنٹس نے حملہ کر کے ان کی شہادت بھی لے لی تھی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے بھائی کے اوپر یہ حملے کی یوجنا تھی، یعنی کہ وہ ٹیریٹوریل آرمی کے میں کام کرتے تھے اور آتنکوادیوں نے ان کی ٹیریٹوریل آرمی کے سپاہی کی آفیسر کی وہ جان لینے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں رزاق شہید ہو گیا۔ بے حد افسوس کی بات ہے، ہم سارے مذہبوں کے لوگ جموں میں کھڑے ہو کر کے اس کی کڑے الفاظ میں نندا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے شہادرہ شریف کے پاس پولیس چوکی کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ آج ڈرون کے دوارا کچھ راجوری میں حملے کیے جا رہے ہیں، وہ ڈرون بھی مار گرائے ہیں ہمارے سرکشا بلوں نے۔ اور ہم یہ چاہیں گے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ایک آپریشن آل آؤٹ آل کلیئر شروع کریں اور جتنے بھی آتنکوادی جموں کشمیر کے ISI ملیٹنٹس کے موڈیولز ہیں ان کو ختم کر کے جموں کشمیر میں حالات ٹھیک کریں۔ افسوس کی بات تو یہ دیکھیے کہ ہمارے گرہ منتری جی کا کہنا ہے کہ ہمارے گرہ منتری جی کہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں حالات ٹھیک ہے، اور 5 اگست 2019 کے بعد انہوں نے جموں کشمیر کو
भारत का अभिन्न अंग बनाया 370 तोड़ करके। और गृहमंत्री जी का भी ये कहना है कि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद आज़ाद हुआ। अगर जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ है तो फिर 3 मेंबर पार्लियामेंट के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी क्यों कश्मीर में नहीं उतार रही है, नंबर 1। नंबर 2 हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार जो है वो चुनाव लड़ने से पहले ही कश्मीर में कबूल कर ली है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी ये कायराना जो हरकत आतंकवादियों ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुलाजिम रज़ाक की जो हत्या की है, जिनके एक भाई AEE हैं और टोपापुर में, और इससे पहले भी टारगेटेड किलिंग्स कुछ हुई हैं, अभी उनका भी जो टोपीपुरा में उसका भी अभी इंसाफ उनके परिवार वालों को नहीं मिला है। इसलिए हम सारे इसकी निंदा करते हैं। और जो टेरिटोरियल आर्मी में जो उनके भाई थे उनके ऊपर ये हमला था, लेकिन शहादत रज़ाक की हो गई जो नमाज पढ़ के मस्जिद में आ रहे थे। और आज इसी को लेकर के हम कड़े अल्फाज में सभी यहाँ पे खड़े होकर के मजम्मत। कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने TPCC के सीनियर लीडर टी नागैया की बेवक्त मौत पर गांधी भवन में एक ताज़ियती मीटिंग का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने तस्वीर पर फूलों के हार चढ़ाए और इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर किसान कांग्रेस के कौमी कायदीन कोदंडा रेड्डी, TPCC के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी, अनुतोला श्याम मोहन, कायदीन निरंजन कुमार राव, नोते श्रीकांत व दीगर मौजूद थे। बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल वोटिंग शुरू होने से पहले ही सूरत लोकसभा सीट से बिला मुकाबला जीत गए हैं। सूरत के इलेक्टोरल ऑफिसर सौरभ पारघी ने बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को इंतखाबी सन सौंपा। निजामाबाद मीटिंग में पीएम मोदी के दौलत की तकसीम के रिमार्क पर CMA रविंद्र रेड्डी का रद्दमल सामने आया है और उन्होंने कहा कि शिकस्त नरेंद्र मोदी का पीछा कर रही, इसलिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेस लोगों की जायदाद मुसलमानों में बांट देगी। ऐसे झूठ से आप कितने दिन मुल्क को धोखा देंगे? ऐसी बातें ना करें, ये मुल्क के लिए महफूज नहीं। मोदी 13 साल वज़ीर आला और 10 साल वज़ीर आज़म रहे, क्या वो नहीं जानते कि आइन किसी की जायदाद लेने और दूसरों को देने की इजाजत नहीं देता? जग्गा रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी और BRS लीडर राहुल गांधी के खानदान पर इल्जाम लगा रहे, जिन्होंने इस मुल्क के लिए सब कुछ किया। वो इस बात की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने मुल्क के साथ क्या किया है। सोनिया गांधी ने तेलंगाना दिया, KCR CM बन गए, KCR का खानदान बिल्कुल तैयार। कांग्रेस ने KCR के कुंबे के साथ क्या किया, वो एक गूंज बन गया। नाइब ब्राह्मणों की मीटिंग में शिरकत करते हुए YSRCP मगरिबी हल्के के मुबसरीन डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडी के मेंबरान और रियासती ख्वातीन डिवीजन की नायब सदर पेड्डा रामनी कुमारी ने विशाखापट्टनम YSR कांग्रेस पार्टी के मगरिबी हल्के के दफ्तर मारी पालम अड्डा लेआउट में GVMC को ऑप्शन मेंबर बहारा भास्कर राव की क़ियादत में नाइब ब्राह्मण कायदीन के साथ एक मीटिंग में शिरकत की और खिताब भी किया। मल्लोत कविता ने महबूबाबाद लोकसभा हलके के लिए अपना नामजदगी कागजात जमा कराए हैं। ये मालूम हुआ है कि वो इस वक्त लोकसभा के रुकन हैं। इस मौके पर कविता राज्यसभा के अरकान ववेरा राजू रविचंद्र और MLC सत्यावती राठौड़, तोकलापल्ली रविंद्र राव, साबिक MLA पेड्डी सुदर्शन रेड्डी, रेखा कांता राव, बोनतू शंकर नायक, हरिप्रिया नायक वो दीगर इस दौरान मौजूद रहे। अराकीन राज्यसभा ववेरा राजू रविचंद्र, लोकसभा मेंबर महबूबाबाद हलके के उम्मीदवार मल्लुथ कविता, साबिक वज़रा सत्यावती राठौड़, रेड नायक MLC तोकलापल्ली रविंद्र राव ने बतौर मेहमान खुसूसी BRS के मनुकोटा महबूबाबाद सभा में शिरकत की। कविता ने BRS उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से खिताब किया। सैयदा फलक AIMIM लीडर ने बहादुरपुरा हलके में इंतखाबी मुहिम चलाई और इस दौरान उन्होंने कहा है कि क्या आपके अब्बा का मुल्क है ये मोदी जी। सैयदा फलक ने बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुनक़दा इंतखाबी मुहिम के तहत मुनक़दा जलसे में शिरकत करते हुए ये बात कही। शायद आज तक इतिहास में हमने इतना बेइज्जत और जलील होने वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा, इसलिए गली गली को चाय वाला, चौकीदार, चोर के नाम से जाने जाते हैं। तो कहीं चौकीदार अपनी तकरीर में बोले कि मुसलमानों के 8-10 बच्चे रहते हैं। ठीक है, रहते होंगे नहीं रहते होंगे, पहले डेटा निकाल के बोलो। मोदी जी के कुछ 6 भाइयां हैं, अमित शाह
चिंतल डिवीजन भगत सिंह नगर रोड नंबर 1 और 2 में पोचम्मा गुड़ी से एमएलए के पी विवेकानंद गौड़ मोहम्मद रफी ने डिवीजन के सीनियर लीडरों के साथ डिवीजन पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह किया और इसके बाद घर घर जाकर बीआरएस पार्टी के एमपी उम्मीदवार रागडी लक्ष्मा रेड्डी के बारे में बात की। मोहम्मद अली शब्बीर ने सीएम रेवंत रेड्डी के घर पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मोहम्मद अली शब्बीर के साथ समीर वलीउल्लाह, मतीन शरीफ और मुजफ्फर अली खान व दीगर मौजूद थे। निजामाबाद के पार्लियामेंट के उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन, शहर के साबिक एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, आरमूर के साबिक एमएलए जीवन रेड्डी जिन्होंने हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस में हिस्सा लिया। निजामाबाद पार्लियामेंट के उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन, साबिक कानूनसाज शहर बिगाला गणेश गुप्ता और साबिक आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने निजामाबाद जिले मरकज में गोल हनुमान और रोकड़ी हनुमान मंदिरों में खुसूसी पूजा की। बाद शोभा यात्रा के दौरान उनकी क़ियादत में जेडपी ऑफिस में छाछ, पानी के पैकेट्स और फल तकसीम किए गए। तहरीक मुस्लिम शाबान के सदर मुश्ताक मलिक ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर सख्त नाराजगी जताई है और इस दौरान अपने ख्यालात का भी इजहार किया है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ज़िमन में भी बात की। देखिए मुश्ताक मलिक ने क्या कहा। जलवर में मुल्क के वज़ीर आज़म ने इंतहाई एक घिनौना बयान दिया। इंतखाबात में सियासी जमातों को टारगेट किया जाता है, लेकिन कांग्रेस को टारगेट करते हुए मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में आ जाएगी तो मुल्क की पूरी ज़मीनें, मुल्क की पूरी संपत्ति, मुल्क के पूरा सोना मुसलमानों के हवाले कर दिया जाएगा। ये इंतहाई घिनौना जवाब है। शायद प्राइम मिनिस्टर शिकस्त के खौफ से बुखलाहट में आ गए हैं और ये 224 वज़ीर आज़म को विदा करने का साल है। नरेंद्र मोदी की सियासत का ख़ात्मे का साल है और नरेंद्र मोदी सरवाइव नहीं करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत भी अगर बनती है तो नरेंद्र मोदी अब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। मुल्क की हवाएं कुछ इसी तरह चल रही हैं। वज़ीर आज़म जो शख्स 10 साल रह चुका है, क्या वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से वाकिफ़ नहीं है? क्या वो रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट से वाकिफ़ नहीं है कि मुसलमानों की इस वक्त मुल्क में क्या पोजीशन है और 75 साल में उनको क्या मिला है? माशी तौर पर, समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर मुसलमान दलित भाइयों से ज़्यादा बिछड़ा हुआ है और मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरे ख़जाने मुसलमानों को दे देगी। तो कांग्रेस के पीरियड में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस मुसलमानों को दिल खोल कर कुछ दी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चीख कर ये कह रही है। तो ये एक समझिए कि पोलराइज करने की कोशिश है और पूरे मुल्क में पोलराइजेशन की कोशिश भारतीय जनता पार्टी बाकी के जो 6 फेस बचे हुए हैं उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुल्क की आवाम समझ गई है कि 10 साला इनका इख्तिदार सिवाय मंदिर, मस्जिद, मुसलमान पाकिस्तान से ख़बरस्तान, शमशान घाट, 80-20 ऐसे नारों में घूमता रहा। अब ये नारे नहीं चल रहे हैं। नारे तो समझिए कि साहब तरक्की के, विकास के, करप्शन के और फिर इलेक्ट्रल बाउंड का जिस तरह से लूट इन्होंने मचाई। ख़ुद हमारे वज़ीर ख़जाना सीतारामन के शौहर ने जो बात कही कि इट्स ए वर्ल्ड बिगेस्ट स्कैम, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के ताल्लुक़ से जो बात उन्होंने कही है और दुनिया लिख भी रही है कि ये समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है कि रुश्वत लेकर इन्होंने ठेके दिए हैं। ये बात आवाम के समझ में आ गई है। अब हिंदू, मुसलमान या फिर समझिए कि साहब शमशान, ख़बरस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, टोपी, ये नहीं चलेगा। लोग तरक्की के नाम पर वोट देंगे और जो हिंदुस्तान का एक मोहब्बत का सोशल फैब्रिक था, वो सोशल फैब्रिक रिटर्न आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका हम इस्तकबाल कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि जो बचे हुए 6 फेस है उसमें ये समझिए कि पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन सब जगह इनकी सूरत हाल ख़राब है। मोदी की विदाई का टाइम आ गया है। मोदी फिर वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म भी कर ले,
तो भी मोदी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है, और जो गोदी मीडिया उनके पीछे भाग रहा है उसको भी समझने की ज़रूरत है कि अब मोदी का वक्त पूरा हो गया, मोदी की सियासत भी पूरी हो गई, मोदी शाह की विदाई का वक्त आ चुका है। तो ये जो बयान है 10 साल वज़ीर आज़म रहने के बाद, सच्चर कमेटी से अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं तो इससे ज़्यादा बदनसीबी की बात कुछ और नहीं है। इसका हम शदीद समझिए कि इसको मजम्मत करते हैं इस बयान की, और इंसाफ होना चाहिए, तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ होना चाहिए, सब कुछ मुसलमानों को मिलना चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं सबके साथ इंसाफ हो, ऐसी हुकूमत मुल्क में आए जो तरक्की की राह पर मुल्क को लेकर चले। शुक्रिया। भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ और माहिर नफ्सियात डॉक्टर सुरेश ने इंटरमीडिएट और SC/SC नताइज के पेश नजर तलबा को एक पैगाम देते हुए कहा है कि इंसान की जिंदगी बहुत ही कीमती है, इसलिए तलबा इम्तिहानात में नाकामी पर हरगिज भी जहनी और नफ्सियाती दबाव का शिकार ना हो और इंतहाई इक़दाम खुदकुशी हरगिज ना करें, बल्कि हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करते हुए जिंदगी में तरक्की करने के लिए मजीद मेहनत करें, क्योंकि तालीम की अहमियत जिंदगी से ज्यादा नहीं बल्कि इंसान नाकामी के बाद भी तालीमी और जिंदगी के मैदान में तरक्की हासिल कर सकता है। మామూలుగా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి. మరి ఎవరైనా విద్యార్థులు మార్క్స్ తక్కువ వస్తే ఆందోళన చెందకుండా మీరు కోసం ఒక హెల్ప్ లైన్ మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది, నెంబర్ ఇస్తాము. విద్యార్థులు కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కానీ ఈ హెల్ప్ లైన్ కాల్ చేసి వారు అసిస్టెంట్ తీసుకోగలరు. మరి ఈ యొక్క రిజల్ట్స్పై మన సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్ సురేష్ గారు వారికి కొన్ని సూచనలు సలహాలు ఇస్తారు. ఇప్పుడు డాక్టర్ సురేష్ గారు ఈ యొక్క విషయమై మనల్ని 2 విషయాలు మనకు చెప్తారు. దయచేసి మీరు మంచిగా విని సాధించేటువంటి సూచనలు మీరు ఫాలో అవ్వండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు డాక్టర్ సురేష్ అల్లాడి. నేను మానసిక వైద్యుడిని. సో ఇప్పుడు పరీక్షల సమయం ముగిసింది. ఇప్పుడు రాబోయే కాలం ఫలితాలకు సంబంధించింది. పరీక్షలు రాసేసాం, ఫలితాలు వస్తుంది. ఈ ఫలితాలు ఇప్పుడు ఈ నెల 24, 25వ తారీఖు ఇంటర్మీడియట్, 30వ తారీఖు 10వ తరగతి పరీక్షలు వెలువడే సమయం. ఇలాంటి సమయంలో విద్యార్థులు మరియు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఒత్తిడికి, ఆందోళనకు మరియు ఆత్మన్యూనత భావానికి గురయ్యే అవకాశాలు ఇంకా ఉన్నాయి. ఇలాంటి వాటి వల్ల యాంగ్జైటీ కానీ అండ్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళి ఆత్మహత్య ఆలోచనలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మార్చ్ ఎగ్జామ్స్ పోతే మళ్ళీ మనకు సెప్టెంబర్, అక్టోబర్లో కూడా మళ్ళీ రాసుకునే వెసులుబాటు కూడా గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసింది. కాబట్టి ఇవే చివరి ఫలితాలు కావు, ముందు ఇంకా చాలా ఉంటుంది జీవితం. క్షణికావేశంలో తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల కుటుంబ వ్యవస్థ మరియు ఒక్కొక్కరి జీవితాలు ఆశాజనకంగా ఉండకుండా సడన్గా మధ్యలోనే ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. దీనివల్ల చాలా కుటుంబాలు రోడ్డున పడే పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి మీకు ఒత్తిడి, ఆందోళన, డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, ఆత్మన్యూనత భావం ఇలాంటివి కలిగినప్పుడు వెంటనే మీరు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ మనకు భారత ప్రభుత్వము 14416 1441 అనే ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ను మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. టెలిమానస అనే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇది 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటుంది. మీకు తగిన సూచనలు, సలహాలు అనేటివి ప్రతి భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి భాషలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ క్లినికల్ సైకాలజిస్టులు, సైకియాట్రిస్టులు 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటారు. మీరు ఈ నెంబర్కి 24 గంటలు ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేయొచ్చు. మీరు చేసే మీ నంబరు, మీ వ్యక్తిగత సమాచారం కూడా గోప్యంగా ఉంచబడుతుంది, సీక్రెట్గా ఉంచబడుతుంది. ఎవరికి చెప్పరు. మీరు ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతుందో మీకు తెలియదు, మీరెవరో ఎదుటి వ్యక్తికి తెలియదు. కాబట్టి మీకు ఎలాంటి ఒత్తిడి అనిపించినా, ఎలాంటి డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, ఆత్మన్యూనత భావం ఇలాంటివి ఎలాంటి ఒత్తిడి కలిగించినప్పుడు దయచేసి ఈ నంబర్కి 14416 1441 అనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్కి ఫోన్ చేసి తగిన సూచనలు, సలహాలు పాటించగలరని అందరినీ వేడుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. अखिल भारतीय युवाजना समीक्षा ने कहा है कि उपल हैदराबाद तेलंगाना रियासत के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले IPL मैचों की टिकटों की फरोख्त क्रिकेट शायकीन के लिए शफाफ नहीं। हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सदर और सेक्रेटरी राज रबनी और जय शाह को ईमेल के जरिए खत भेजा है। इस मौके पर खिताब करते हुए AIYF के रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी वलीउल्लाह कादरी के धर्मेंद्र ने इल्जाम लगाया कि मशहूर शख्सियात, सरकारी अफसरान और बाअसर लोगों को इनके ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए टिकट और एजाजी पास के तौर पर IPL के टिकट दिए जा रहे हैं।
महकमे स्कूल एजुकेशन का कहना है कि 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज रवां माह की 30 तारीख को सुबह 11 बजे जारी किए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर पार्लिमानी उम्मीदवार आगा सैयद रोला मेहदी वसत कश्मीर के जिले बडगाम के खान साहिब और खाग इलाके में अवामी जलसा कर रहे और राज के कन्वेंशन में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वर्कर्स इजलास में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। आगा सैयद रोला ने आजादाना तौर पर हिस्सा लेने और अपनी सियासी जमात के हक में वोट देने पर जोर दिया। बीजेपी की है और बीजेपी के है और बीजेपी हमारी है। वो जमात जिनके लिए ये काम करते हैं वो बीजेपी भी कहती है कि ये हमारे आमिल है, यहाँ पे एजेंट है, हम इन्हीं के जरिए अपनी बात जो है जम्मू कश्मीर अपना कंट्रोल जम्मू कश्मीर पे करेंगे और इन्हीं के जरिए अपना इलेक्शन जम्मू कश्मीर में लड़ेंगे। तो वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए लड़ाई लड़ रही है। हम उस वकार के लिए उन हुकूक के लिए जो हमसे छीने गए हैं जम्मू कश्मीर के अवाम को मुतहरिक करें, उसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस मुतहरिक होने के जरिए इलेक्शन के जरिए उस मुतहरिक आवाज़ को उन ऐवानों तक पहुँचाए जहाँ पे वो फैसले लिए गए और कोशिश करें कि हमारा वकार, हमारी इज्जत, हमारे जमहूरियों को हमें वापस मिले। 2019 के बाद ये पार्लियामेंट 2019 में जो फैसले लिए गए, जिस पार्लियामेंट में फैसले लिए गए, ये इंतखाबात उस पार्लियामेंट के लिए जा रहे हैं। तो 2019 के बाद हमें अपनी राय जाहिर करने का मौका नहीं दिया गया और 2019 के बाद ये इलेक्शन वो मौका दे रहा है कि उस ऐवान में जम्मू कश्मीर की आवाम जमहूरी तरीके से अपनी बात पहुंचाए कि जो 2019 में फैसले लिए गए वो हमें कबूल नहीं है, हम उन फैसलों के खिलाफ है। डायरेक्टली सपोर्ट करें, इनडायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रही। ऐलान उन्होंने कहा, बीजेपी ने भी कहा, अभी मैंने इस सवाल के जवाब में कहा, बीजेपी आपके सामने बयान है, बीजेपी का भी बयान है, इन जमातों का भी बयान है, दोनों जमातों ने कहा कि अब बीजेपी हमारी है, हम बीजेपी के हैं और खुले आम ऐलान भी किया कि इलेक्शन के बाद अगर इनको मौका मिला, जो मौका इनको जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं देगी तो ये बीजेपी के साथ इत्तेहाद करेंगे। ये जिस तरह से इस वक्त मोदी की लहर कहा जा रहा है कि 400 पार हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो कहाँ पर आप हिंदुस्तान मुल्क को देखें? कल आपने फ्रस्ट्रेशन देखी मोदी की, एक प्राइम मिनिस्टर एक अक़लियत के खिलाफ कैसे ज़बान दराजी करता है, किस तरह के मंसूबे बना रहा है मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अगले 1 माह तक रियासत में पीने के पानी की सप्लाई की सूरत-ए-हाल पर सख्त नजर रखें। उन्होंने ओहदेदारों से कहा है कि वो सिस्टम को तैयार करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि पानी की सप्लाई में रुकावटें उनका ध्यान ना जाए। चीफ सेक्रेटरी ने म्यूनिसिपल आपाशी पंचायत राज महकमों के ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और रियासत में पीने के पानी की फराहमी की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में सप्लाई में खलल है उनकी निशानदेही की जाए और इस बात को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएं कि लोगों को रुकावटों की वजह से परेशानी का सामना न करना पड़े। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी आज़मीन हज के इंतजामात में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज़मीन हज को तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हर किस्म की सहूलतें फराहम करेगी। तेलंगाना स्टेट हज के जरिए हैदराबाद एम्बैरिगेशन पॉइंट हज हाउस नामपली से 11,000 से ज्यादा आज़मीन हज की सादत हासिल करने के लिए हज हाउस नामपली से रवाना होंगे। हज कमेटी की जानिब से अजला व दीगर रियासतों के आज़मीन हज को ग़िज़ा और रिहाइश की सहूलतें फराहम की जाती हैं। आज़मीन हज अपनी सेहत का ख़ुसूसी ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अनक़रीब आज़मीन हज को सेहतमंदी के लिए टीका अंदाजी भी की जाएगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स हज की सादत हासिल करता है अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। आज़मीन हज जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं उनकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना सैयद शाह गुलाम फजल बियाबानी खुसरू पातशाह सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने 21 अप्रैल को मस्जिद बगदादी नामपल्ली में आज़मीन हज के बड़े मरकजी इज्तिमा से सदारती खिताब करते हुए कहा है। बीआरएस पार्टी पार्लिमानी उम्मीदवार आतरम सुक्कू ने साबिक वजीर जोगू रामन्ना, रुकन असम्बली बुद्ध अनिल जादव, रुकन असम्बली आसिफाबाद कोआ लक्ष्मी, रुकन खानसाज कौंसल विठल, बीआरएस कायद यूनुस अब्बानी के हमरा जिले कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राजश्री शाह को पर्चे नामजदगी हवाले किया। बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो बीआरएस पार्टी की जानिब से पार्लिमानी उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि अवाम केसीआर की जानिब से फराहम करदा स्कीमात से मुतासर हैं और वो आज भी बीआरएस पार्टी को पसंद करते हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आतरम सबको बीआरएस पार्टी से पार्लियामेंट मेंबर के लिए मैं आज
नॉमिनेशन डाले। ये नॉमिनेशन का या प्रोग्राम में आए हुए तमाम हमारे बड़े लोग जोगरामना साहब, आज सुबह से एमएलए और लक्ष्मी गारू, बहुत एमएलए अनिल जाधव साहब, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज जॉनसन नायक और उम्मडी आदिलाबाद जिले के एमएलसी साहब बिटलन्ना और रामकिशन रेड्डी, सुभाष साहब और अपना यूनुस अकमानी साहब, साहिद भाई और जितना भी हमारे जो प्रोग्राम का आए हो सबको मैं आदाब करते हुए मैं तमाम हमारे मुसलमान भाई से मेरा गुजारिश है, अगले हमारा बीआरएस पार्टी का सरकार था केसीआर साहब ने सारे अपने तेलंगाना में 250 मुसलमान भाइयों को और रोजगार के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत ही काम कर रहे थे और शादी मुबारक का एक स्कीम लगा के गोर गरीब बच्चों के लिए मदद करे। वैसे गोर गरीब का बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए माइनॉरिटी गुरुकुलम स्कूल हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में रखे और रमजान का तोहफा भी दिए। अभी देखो अभी नया सरकार है कांग्रेस की सरकार, बहुत बड़े बड़े वादे दिए। ये बारे में रमजान का महीना में कम से कम उनको दावत ना दिए, तोहफा ना दिए। अभी गरीब बच्चों के लिए सोचने का सरकार जब बीआरएस सरकार केसीआर साहब का सरकार था, इसलिए आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, आप जरूर मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ कारका निशन को वोट डाल के ज़्यादा से ज़्यादा वोट से मेरे को जिताना बोल के, जिताने के बाद जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में या बैसा निर्मल बहुत आदिलाबाद खानापुर आसिफाबाद सिरपुर जितना भी मुसलमान भाई गरीब है, गरीब का सेवा के लिए तो मैं अभी पार्लियामेंट में अभी खड़े हो चुके हो। जरूर आप लोग तमाम लोग कारका निशान को वोट डाल के मेरे को जिताना बोल के मेरा गुजारिश है। सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सब रेवंत रेड्डी साहब कल बोले अगर उनके कैंडिडेट को जिताते होंगे तो शीशे लाते, कुट्टी प्रोजेक्ट बनाते, बोले आपके कुछ है? देखो भाई यहाँ पर मौजूद कांग्रेस की सरकार भी था, अभी 10 साल बीजेपी की सरकार भी है फिलहाल। उन लोगों की तेलंगाना के लिए, तेलंगाना के जनता के लिए, फिलहाल आदिलाबाद के लिए परसों में प्रधानी मोदी साहब यहाँ के एक भी वादा नहीं करे कि ये सीसे फैक्ट्री के लिए और आदिलाबाद आर्मोर रेलवे लाइन के लिए। सो अभी लड़ना पड़ेगा। इतने पार्टी भी था लेकिन बीआरएस पार्टी टीआरएस पार्टी था जब बीच तेलंगाना हासिल हुआ। अभी भी अपना आदिलाबाद पार्लियामेंट का जितना भी इश्यूज है बड़ा इशू लाइक आदिलाबाद टू आर्मोर रेलवे लाइन, वैसे टेक्सटाइल और सीसे कंपनी का फैक्ट्री का ओपनिंग और एरोड्रम संबंधित ये सब अपने को होना बोले तो पार्लियामेंट में हमारा आवाज होना कि या जनता को आदिलाबाद का जनता को क्या होना ये लोग पूछता भी नहीं। क्या बोले तो कांग्रेस पार्टी का ये पूरा देश का एक मामला रहता। अपन हमारा बीआरएस पार्टी ये कि हमारे तेलंगाना के जनता तेलंगाना का क्या इशू बड़ा इशू है उसके लिए हम लड़ने का रेडी हो, लड़ते भी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।